اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لاٹری کا ٹکٹ، جو ایک ڈرامہ کا نام ہے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کل کے سبق کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری یا یاد دہانی کروں گا. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ شوکت تھانوی کیسے قلم کار تھے، یعنی وہ مشہور مزاح نگار تھے. وہ جو بھی لکھتے تھے مزاحیہ انداز میں لکھتے تھے. ان کے قلم میں بلا کی روانی تھی، یعنی جب وہ لکھنے بیٹھتے تھے تو مسلسل وہ لکھتے رہتے تھے. اسی طرح ہم نے پڑھا کہ وہ روزمرہ کی باتوں یا آئے دن واقعات کو کس طرح بیان کرتے تھے. یعنی وہ روزمرہ کی باتوں یا آئے دن واقعات کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ پڑھنے والا بے اختیار ہنس پڑتا تھا. جو اس کا ڈرامہ پڑھتا تھا یا جو اس کا ڈرامہ دیکھتا تھا بے اختیار ہنس پڑتا تھا. یعنی مزاح نگاری اس کے قلم کی خاص خاصیت تھی. اسی طرح سے ہم نے پڑھا وہ کس بات کا خیال رکھتے تھے، یعنی گری ہوئی بات یا فقرہ نہ آنے پائی. ایک طرف وہ مزاح نگار تھے، مزاح انداز میں لکھتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کوئی ایسی بات یا فقرہ تحریر میں نہ آنے پائی جس کی قیمت نہ ہو، جو گرا ہوا ہو. اسی طرح سے انہوں نے ایک ایسی شاعری کی ہے، یعنی شوکت تھانوی نے کیسی شاعری کی ہے، اس کی شاعری کیسی تھی. تو ہم نے پڑھا کہ اس کی شاعری سنجیدہ تھی، نہ کہ مزاحیہ شاعری. یعنی اس نے جو شاعری کی ہے وہ مزاحیہ شاعری نہیں تھی، بلکہ وہ سنجیدہ شاعری تھی. لوگ سنجیدہ ہو کر اس کی شاعری پڑھتے تھے. پیارے بچوں، یہ تھا کل کے بارے میں تھوڑی سی یاد دہانی. جو ہم نے کل سبق پڑھا اس کی تھوڑی بہت یاد دہانی. تو اس کے بعد میں نے آپ کی کتاب سے کچھ نئے اور تھوڑے بہت مشکل الفاظ چن لیے ہیں. ہم دیکھیں گے، ہم سنیں گے یہ الفاظ کیا ہیں، ان کے معنی کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. تو پہلا لفظ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خیرات ہے. خیرات یعنی خیرات کیا ہوتا ہے؟ خدا کے نام پر کوئی چیز دینا، یعنی لوگوں سے اس کا معاوضہ نہیں لینا، صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز دینا بلا معاوضہ، جس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے تار. تار کیا ہوتا ہے؟ ڈاک کے ذریعے پیغام، یعنی وہ پیغام، وہ اطلاع، وہ انفارمیشن جو ہمیں ڈاک خانے یا پوسٹ آفس کے ذریعے گھر پہنچتی ہے. اس طرح سے اور ایک لفظ ہے سرخانہ. سرخانہ اس ڈرامے میں ایک بار استعمال ہوا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تنگ کرنا، شور کرنا. جب کوئی بھی بچہ یا کوئی شخص بار بار کسی بات کو دہراتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرا سر کھایا، یعنی اس نے مجھے تنگ کیا، اس نے خم کا شور مچایا، اس نے میرا سر خراب کر دیا. تو سر کھانا
इन्हें तंग करना, शोर करना। इसी तरह से और एक लफ्ज़ है कोठी। प्यारे बच्चों, कोठी मकान या इमारत को कहते हैं। मकान या इमारत कोठी कहलाती है। इसी तरह से बिकना, बिकना एक लफ्ज़ है जिसका मायने है बेचना, फरोख्त करना, किसी को देना। ऐसे ही शेख चिड़ियों की बातें, शेख चिड़ियों की बातें करना, यानी अजीब सी बातें करना, ऐसी बातें करना जो दिल में नहीं बैठती हैं, जो दिल में जगह नहीं करती हैं। तो ये हुआ शेख चिड़ियों की बातें। इसी तरह से इंतज़ाम से रहना। इंतज़ाम से रहना क्या हो गया? यानी इत्मीनान से रहना, अच्छी तरह रहना, बेफिक्र रहना। मुअम्मा और एक लफ्ज़ है इधर, यानी समझ से बाहर, ऐसी बात जो समझ से बाहर हो, जो समझ नहीं आती है, उसको हम मुअम्मा कहते हैं, या उसको हम पहेली भी कहते हैं, जिसके माने समझ में नहीं आते हैं, उसको मुअम्मा कहते हैं। ख्याल रखना, मुअम्मा जो है ये समझ से बाहर, ऐसी बात जो समझ से बाहर हो, समझ में नहीं आती है, दिमाग में नहीं आती है। इसी तरह से ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव क्या होता है? यहाँ पर आपके सबक में ख्याली पुलाव का इस्तेमाल हुआ है, यानी ख्यालों के ज़रिए आसमान पर जाना। कभी कभार इंसान ऐसे ऐसे मनसूबे बनाता है कि उनका हासिल होना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ऐसे पुलाव खाते हैं, ऐसे ऐसे ख्याली पुलाव खाते हैं, यानी ख्यालों के ज़रिए आसमान पर जाना। कल मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं वैसा करूँगा, लेकिन वो सब नामुमकिन चीज़ होती है। यानी उस चीज़ की उम्मीद रखना जो हासिल करना नामुमकिन हो, जो कभी भी मुमकिन न हो, उसी चीज़ की उम्मीद रखना, उसी चीज़ की आरज़ू करना। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस सबक के मुतल्लिक़ चंद अल्फाज जिनके माने आपने देखे और सुने। मुझे उम्मीद है कि आप इन अल्फाज को फिर देखें और अपने दिमाग में इनके माने जो हैं वो आप अच्छी तरह से बिठाएं और समझने की कोशिश करें। तो इसके बाद हम आते हैं अब अपनी किताब की तरफ, अपने लेसन की तरफ। तो आप किताब खोलेंगे और लॉटरी का टिकट निकालेंगे जो सफ़े नंबर 51 यानी 51 पर है। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही हैं, मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी की बीवी जो होती है वो चूल्हा फूंक रही हैं, आग जलाती हैं। उसने हांडी चूल्हे पर रखी है और वो फूंक रही है, वो आग जलाने की कोशिश करती है। इसी अवस्था में मुंशी जी आते हैं। बीवी मुंशी जी से कहती है, मोटी गीली लकड़ियाँ उठाकर दे दें। आपने मुझे ऐसी लकड़ियाँ दे दी हैं जो गीली हैं, जो नहीं जलती हैं, जैसे खैरात ही में तो दी हैं, जैसा कि आपको किसी ने ये मुफ्त में ये लकड़ियाँ दी हैं। ऐसी लकड़ियाँ, ऐसी गीली लकड़ियाँ, आपने ये गीली लकड़ियाँ यहाँ पर क्यों लाई हैं? ये चूल्हा नहीं जलता है। बीवी चूल्हा फूंकती हैं, दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी कहते हैं, अरे भाई कहाँ गए? मुंशी जी अपनी बीवी को ढूंढते हैं और कहते हैं, अरे भाई कहाँ गए? ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया। मुंशी जी अपनी बीवी से कहते हैं कि आप सिर्फ इस हांडी को देखती हैं, इस चूल्हे को देखती हैं, मुझे हैरानी है, आपको कोई फिक्र नहीं है। आप मुझे कहिए कि कोई तार तो नहीं आया, डाकिया ने कोई तार तो नहीं लाया है यहाँ पर। बीवी कहती है, तार? कैसा तार? बीवी हैरान रहती है। बीवी हैरान होकर कहती है, तार? कैसा तार? मुझे पता नहीं है कैसा तार उसको यहाँ पर लाना था। मुंशी जी कहते हैं, इन्हें मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। इन्हें हमें 7 तारीख को तार आने वाली थी और लॉटरी भी आने वाली थी। तो आज 7 तारीख है, तो आपको मत पता है कि तार आया है नहीं आया है। बीवी कहती है, तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है, और मैं पूछती हूँ अब कि ये लकड़ियाँ कहाँ से
उठा लाए थे। बीवी कहती है कि मुझे सचमुच लगता था कि कोई किसी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का तार आने वाला है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछती हूँ कि आपने ये गीली और ख़राब लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर लाई हैं। मुंशी जी कहते हैं, जी जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हा हांडी को। मुंशी जी अपनी बीवी से कहते हैं कि इस लकड़ी को भी छोड़ो, इसको भी जहन्नम में डालो और इस चूल्हा हांडी को भी छोड़ो। बीवी कहती है, फुकनी फेंकते हुए, कहो क्या कहते हो, सुन तो रही हूँ। बीवी अपनी शौहर ने मुंशी जी से कहती है, आप कहिए, आप क्या कहते हैं, मैं तो सुन रही हूँ। मुंशी जी कहते हैं, ज़रा मुझे वो टिकट निकाल कर दे दो, कहाँ रखे हैं। मुंशी जी अपनी बीवी से कहते हैं, वो टिकट जो मैंने लॉटरी के लिए हासिल किया था, वो अलमारी से निकाल दो और वो मुझे दे दो। वो कहाँ रखा है आपने। बीवी कहती है, टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। बीवी कहती है कि अगर मैं टिकट ढूंढने बैठूँ तो हांडी इन्हें खाना पकाने में देर हो जाएगी और नसीम जब स्कूल से आएगा तो शोर मचाएगा, वो मुझे तंग करेगा। मुंशी जी कहते हैं, जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है, इन्हें आवाज़ होती है और सलीम दाखिल होता है। सलीम आदाब अर्ज़। मुंशी जी कहते हैं, ए भई सुनो तो, रास्ते में तारगर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल नज़र नहीं आया। सलीम मुंशी जी का छोटा भाई है। मुंशी जी अपने छोटे भाई सलीम से कहते हैं कि ए भई तुम भी सुनो, आपने मत रास्ते में कोई तारगर का यानी पोस्ट ऑफिस का कोई आदमी लाल साइकिल पर नहीं देखा। सलीम जवाब देता है, जी नहीं, तो क्यों, खैर तो है। सलीम कहता है कि सलीम कहता है, जी नहीं, हैरान होकर कहता है, जी नहीं, मैंने नहीं देखा है, तो क्यों, खैर तो है, क्या बात है, क्या मामला है, खैर है। मुंशी जी कहते हैं, हाँ एक तार का इंतज़ार है मियाँ, ये तुमने जर बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है। मुंशी जी सलीम से कहते हैं, अपने छोटे भाई से कहते हैं कि हाँ एक तार का इंतज़ार है मुझे, तो क्या आपने उधर जो चौराहे यानी 4 रास्तों वाली जगह पर आपने वो जर्द बाग के नज़दीक कोई सुर्ख रंग की, कोई लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है या 2 मंजिला इमारत देखी है। सलीम कहते हैं, जी हाँ वो कोठी जो आजकल बिक रही है, हाँ मैंने वो कोठी देखी है जिसको आज बिक रहे हैं। मुंशी जी कहते हैं, हाँ हाँ वही, कैसी है वो, क्या राय है तुम्हारी अगर मैं इसको ले लूँ। तो मुंशी जी सलीम से कहते हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है अगर मैं उस कोठी को ले लूँ, उस इमारत को ले लूँ। सलीम हैरान होकर कहते हैं कि क्या आप उस कोठी को ले सकते हैं जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं। मुंशी जी कहते हैं, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। मुंशी जी कहते हैं कि हाँ मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा यही ख्याल है कि मैं उस कोठी को ले लूँ और अपने लिए रखूँ। बीवी आती है, सलीम आधा वर्ष भाभी। सलीम मुंशी जी की बीवी को सलाम बजा लाती है, कहता है, आधा वर्ष भाभी। बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो, मुंशी जी से लो ये टिकट संभालो। तो मुंशी जी की बीवी सलीम से कहती है, आप ठीक ठाक हैं, जीते रहो बेटा। तो उधर से वो टिकट लाती है और मुंशी जी से कहते हैं कि ले लो ये टिकट, ये संभालो। मुंशी जी कहते हैं, हाँ यही है। तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35,000 तक दे देंगे। मुंशी जी खैर पुलाव पका रहा है, उसके पास पैसे अभी तो नहीं हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो 40,000 इसके मांगते हैं और इसका ख्याल है कि 35,000 तक वो कोठी वाले इस कोठी को बेच देंगे। बीवी, क्या चीज़? बीवी कहती है, क्या चीज़, कौन सी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं?
मुंशी जी कहते हैं भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसके कि ज़मीन खरीद जाए फिर इस पर इमारत बने। मेरे ख्याल में तो अगर एक कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। मुंशी जी कहते हैं मैंने एक कोठी देखी है, वो बहुत अच्छी कोठी है। इसके बजाय कि हम ज़मीन खरीदेंगे फिर उस पर इमारत बनाएंगे, वो तो लंबा चौड़ा काम है। मेरे ख्याल में अगर यही कोठी हमें मिल जाए तो यही बेहतर है, यही अच्छा है। बीवी कहती है तो कौन ले रहा है वो कोठी? बीवी अपने शौहर यानी मुंशी से कहते हैं कौन उस कोठी को ले रहा है? मुंशी जी कहते हैं फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है, और कौन लेता? और मियाँ सलीम। मुंशी जी कहते हैं कि आप वही सवाल दोहराते हैं, उसको कौन लेगा, उसको कौन लेगा? अरे कौन लेगा? मैं ही लूँगा उसको, मेरा इरादा है कि मैं उस कोठी को खरीदूँ, और कौन लेता? और मियाँ सलीम। और मियाँ सलीम मेरे साथ है। बीवी कहती है बात काट कर, मुझे शेख चिड़ियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बीवी मुझे से कहती है कि ये शेख चिड़ियों जैसी बातें, ये अजीब सी बातें मुझे ठीक नहीं लगती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी बातें मत करो। मुझे जी कहते हैं शेख चिड़ियों की सी बातें, तुम तो बेवकूफ़, जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साया बनकर तो इस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ। मुझे जी कहते हैं ये शेख चिड़ियों की बातें नहीं हैं, तुम ना समझ हो, तुम जाहिल हो। जब मैं इस कोठी को खरीदूंगा और इस कोठी में जब आप बैठोगी एक रानी बनकर तो उस वक़्त मैं आपको मिजाज के बारे में पूछूंगा। सलीम सलीम कहता है आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी कि आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी। सलीम मुझे कहता है आप मुझे बताइए कि ये किस्सा क्या है, ये मामला क्या है, यानी कि सचमुच आप वो कोठी खरीदने जा रहे हैं? मुंशी जी